Welcome, dear students, in your physics class. This is your fifth class 10 for chapter electricity, and this is the fifth part of your this chapter. Student, we know that as according to Ohm's law, when the physical parameters of a wire like the length and temperature remain constant, then potential difference will be directly proportional to current. And from here, V is equals to IR. ये आता है. From here, we can calculate that R is equals to V upon I. Here R is known as the resistance. R को हम यहाँ पर resistance कहते हैं. Now, a very interesting topic is how can we connect this resistance? This is the symbolic representation of resistance. How can we connect this resistance in the electric circuit? So the answer is we can connect this resistance in series combination or number 2 in parallel combination. Okay. Now, what is series combination? हम सबसे पहले यहाँ पर series combination को पढ़ेंगे. ये series combination में क्या होता है? Dear students, if we take two resistance R1 and second resistance R2, and if the last terminal of resistance R1 is connected with the first terminal of R2 like this, then these two resistance are said to be in series combination. इस तरह आप आगे कितने भी resistance को series में जोड़ सकते हैं. If the first end of the resistance is connected with the one terminal of the battery, that is positive, and then it is connected with the negative terminal of the battery. So as soon as जैसे ही आप यहाँ पर की लगाते हैं, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगता है. और करंट कितना फ्लो होगा? अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो इसमें I करंट पास होगा. R1 के अंदर भी I करंट जाएगा, R2 के अंदर भी I करंट जाएगा, और वो वापस नेगेटिव होते हुए पूरे सर्किट में कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर? So when the second terminal of each resistance is connected to the first terminal of the next resistance, then the resistance are said to be in series combination. Now, dear students, let us consider the two resistance R1 and R2, which are connected in series combination, and the potential difference across this resistance R1 is V1 and across R2 is V2, like this. Okay. So if the total potential difference applied on the circuit with the help of this battery is V, and individual resistance is V1 and V2, current is I, then by Ohm's law, we know that V is equals to IR. So for V1, we can say V1 is equals to IR1. This is our equation number 1. For second potential, V2 is equals to IR2. This is our equation number 2. And the potential difference of the source, potential difference of the source क्या है हमारे पास? बैटरी है. Then it will be V is equals to IR. V is equals to IR. Clear? So अगर आप यहाँ पे टोटल पोटेंशियल देखते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, देन इट विल बी इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2. आप यहाँ पे V की वैल्यू रखेंगे IR टोटल पोटेंशियल, V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से IR1, V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से IR2. देन I कॉमन आ जाएगा, यहाँ से अंदर बचेगा R1 प्लस R2. I से I कैंसिल आउट, इट मीन्स R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2. अगर आप यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लेते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता. अगर n रेजिस्टेंस लेते हैं तो यहाँ पर 4 n number of resistance which are connected in series combination, then total equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3 plus कितने रेजिस्टेंस जोड़े हैं? n जोड़े हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा Rn. क्लियर? तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में ये टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको आप नोट कर लें. नोट 1, नंबर 1, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी आपने रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़े हैं Rn. नंबर 2, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रेजिस्टेंस कैसा मिलता है? रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मैक्सिमम मिलता है. मैक्सिमम कैसे मिलता है उसको देखेंगे. इफ वी हैव, इसको यहाँ पे क्वेश्चन की तरह समझेंगे. इफ वी हैव 2 resistance or 3 resistance, R1 that is of 2 ohm, R2 that is of 4 ohm, and R3 of 6 ohm. Okay, and these resistance are connected with a battery of V volt,
एंड ए की एंड ए अमीटर। अमीटर को हमने यूज बताया था, इट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो टोटल रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 all resistance are connected in series because R1 रेजिस्टेंस का लास्ट टर्मिनल R2 रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसी तरह R2 और R3 भी कनेक्टेड है। सो ऑल थ्री रेजिस्टेंस हम करेंगे R1, R2 and R3 all are connected in series combination, all are connected in series combination, so their equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3। R equivalent is equals to R1 की वैल्यू दी हुई है आपको 2 ओम, तो 2, R2 की वैल्यू है 4 ओम प्लस 4 और R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 ओम, तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12, इट मीन्स 12 ओम। तो आप देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 6 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आएगा 12 ओम। तो दैट इज व्हाई सीरीज रेजिस्टेंस में आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम मिलता है। नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड पॉइंट देखिए इसमें नोट करने का, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये डिफरेंट होता है V1, V2 एंड V3। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, चाहे वो R1 है, चाहे वो R2 है, चाहे वो R3 है, चाहे यहाँ पे बल्ब लगा दें आप, उन सबको इक्वल पोटेंशियल V नहीं मिलता है, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी होता है कि इट हैज डिफरेंट पोटेंशियल V1, V2 एंड V3। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीबीएसई इसी को बेस बनाकर क्वेश्चन भी पूछता है। क्वेश्चन क्या आता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन of resistance, the total resistance R is equal to the sum of all the individual resistances and equivalent resistance R is greater than any individual resistance which are connected in series combination। तो इसको एक बार समझेंगे क्या कहता है ये, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये क्या है R1, R2 एंड R3, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 plus R2 plus R3 एंड सो ऑन। एंड सेकंड पॉइंट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1 2 ओम, R2 4 ओम एंड R3 6 ओम। तो इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 6 ओम का है। बट व्हेन these 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है, 6 ओम से भी ज्यादा आ रहा है 12 ओम। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे देखिए नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नाम से क्लियर है कि रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। R1 और R2 दोनों के फर्स्ट टर्मिनल को आप एक पॉइंट से कनेक्ट कीजिए और R1 एंड R2 के लास्ट टर्मिनल को आप एक पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए। नाउ द R1 एंड R2 आर सेट टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसके पॉइंट A और पॉइंट B को आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। ये बैटरी हो गई V वोल्ट की, यहाँ पे की लगा दी हमने, एक हमने यहाँ पर एमीटर लगा दिया जो करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा। क्लियर, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। जैसे ही आप इसमें यहाँ पर करंट को फ्लो कराते हैं, की लगाते ही, सो आई करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ओके, अब जब यहाँ पे टर्मिनल A पर आई करंट जाएगी, देन इट विल गेट डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स I1 एंड I2। ये I1 करंट R1 में जाएगी और I2 करंट रेजिस्टेंस R2 में जाएगी, और फाइनली कहाँ मिल जाएंगी, टर्मिनल B पर। तो टोटल करंट यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स I1 प्लस I2। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहेंगे, व्हेन द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ईच रेजिस्टेंस is connected at one common point A and the another terminal of each resistance is connected with
another terminal or another common point B, then this combination is known as parallel combination. आप यहाँ पर R3 रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं, R4 भी ले सकते हैं, R5 भी ले सकते हैं, सब इसी तरह कनेक्ट होंगे. So if we just calculate the value of this parallel combination, then we know that by Ohm's law V is equals to IR. Then I will comes out, I is equals to V upon R. For resistance 1, for R1, R1 में यहाँ पर कितना करंट पास आउट हो रहा होगा? I1 is equals to V upon R1. ध्यान दीजिए, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? V होगा, और R2 के अक्रॉस भी यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? V होगा, बिकॉज these two terminals R1 and R2 are just connected directly with the battery. R1 और R2 दोनों को V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. तो I1 is equals to V upon R1. Similarly, I2 is equals to V upon R2. Clear? And the total potential supplied by the battery V is equals to IRP. RP means resistance in parallel combination. So from here we can calculate I is equals to V upon RP. Clear? Now, dear students, we know that the total current is I is equals to I1 plus I2. I की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन नंबर 3 से देखेंगे, V upon RP. V upon RP. I1 की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन नंबर 1 से V upon R1. I2 की वैल्यू कितनी है? V upon R2. अगर आप यहाँ से V को कॉमन लें तो कितना आएगा? 1 upon RP. ऊपर कितना बचेगा? 1 upon R1 plus 1 upon R2. V से V कैंसिल आउट, तो 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is the formula derived in parallel combination. So dear students, through this way we can calculate the resistance in parallel combination. Some notes in parallel combination. Number 1, in parallel combination the formula comes out 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, and if we have n number of resistance then it will be 1 upon Rn. Number 2, in parallel combination we will get minimum resistance. Minimum resistance. How does it possible? इसको देखते हैं एक example के through. If we have two resistance R1 of 2 ohm and another resistance R2 of 4 ohm. Okay, दोनों टर्मिनल का फर्स्ट पॉइंट 1 से, दोनों टर्मिनल का लास्ट पॉइंट 1 से कनेक्ट करते हैं. इस तरीके से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो जाएंगे. V वोल्ट की बैटरी है, सो हम कहेंगे R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? RP. 1 upon RP is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon RP is equals to R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 ओम. R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 4 ओम. सो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा. तो 2 2 4, 4 1 1, 4 1 4, तो 2 plus 1 कितना जाएगा? 3 upon 4. सो थ्रू दिस वे 1 upon RP की वैल्यू कितनी आ गई? 3 upon 4. आप इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो RP, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेसिप्रोकल जरूर करना है. RP is equals to 4 upon 3, और जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 रेस्ट में बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0, तो 3 3 जा 9, फिर 1, तो अप्रोक्सीमेट आपके पास आ जाएगा 1.3 ओम. आप देखिए मिनिमम रेजिस्टेंस आपके पास कितना था? 2 ओम था, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1.3 ओम. सो थ्रू दिस वे वी कैन सी दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is minimum. Number 3, in parallel combination voltage is same, और यही इसका एडवांटेज भी है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उन सबको इक्वल पोटेंशियल यहाँ पर मिलता है. करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये I, ये डिफरेंट होती है, I1, I2 एंड I3. क्लियर? इट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज R1 खराब हो जाता है तो फिर भी R2 प्रॉपर्ली वर्क करता रहेगा. R1 के खराब होने से R2 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके एडवांटेज में काउंट किया जाता है. सो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.